سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو. بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آدھ تبدیلی کی ہے. میں آگے بھی کروں گا. میں محمود خان آپ کو بھی یہ کہتا ہوں اپنی ٹیم کے اوپر نظر رکھے. جیت کے لیے ٹیم میں تبدیلی کرنا پڑتی ہے. آئندہ بھی کروں گا. کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو خبردار کر دیا. جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. وزرائے اعلیٰ کو بھی اپنی اپنی ٹیم پر نظر رکھنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا ملک کو جتوانا ہے. جو ملک کو فائدہ پہنچائے گا وہی وزیر ٹیم کا حصہ ہوگا. معیشت کی نیا پار لگانے حفیظ شیخ دبئی سے پاکستان پہنچ گئے. معاشی فیصلوں کے لیے اپنا روڈ میپ بھی تیار کر لیا. کہتے ہیں معاشی فیصلوں میں پارٹی ووٹ بینک مقدم نہیں ہوگا. فیصلوں میں ملکی مفاد عزیز ہونا چاہیے. حفیظ شیخ کی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع. کپتان کے نئے کھلاڑیوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی. اعظم سواتی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. فردوس عاشقاوان وزارت اطلاعات پہنچ گئیں. چارج لے لیا. فواد چودھری نے بطور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا عہدہ بھی سنبھال لیا. اعجاز شاہ نے بھی وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. عامر کیانی اور اسد عمر کو منصب سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری. ملکی معاشی حالت بتا کر قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزراء کی تبدیلیوں کے بعد خبردار کر دیا. کہتے ہیں پاکستان پہلی بار نہیں 16ویں بار IMF کے پاس جا رہا ہے. حکومت کو معاشی چیلنجز ورثے میں ملے. یہ بھی بتا دیا کہ جمہوریت میں وزیر اعظم اپنی کابینہ تبدیل کر سکتا ہے. دو بڑوں کی جنگ میں اسد عمر کو ہٹایا گیا. خورشید شاہ نے موقع ملتے ہی تیر چلا دیا. کہا اس حکومت میں حکمران بھی محفوظ نہیں. عمران خان پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. ذہن میں آج بھی کنٹینر ہے. معیشت کی کمزوری حکومت کی ناکامی قرار دے دی. بولے آخرکار حکومت کو پی پی کی ضرورت پڑ ہی گئی. حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے. مشیر خزانہ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ہی نہیں. اتحادی بھی حکومت کے خلاف بول پڑے. قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ معیشت کا ہے. شوکت عزیز سے لندن میں ملاقات ہوئی. وہ بھی ملکی معیشت پر فکر مند ہیں. کابینہ میں تبدیلی کہیں سلیکٹرز نے تو نہیں کرائی. پیپلز پارٹی نے سوال اٹھا دیا. نفیسہ شاہ کہتی ہیں وزیر اعظم بے بس ہیں. عاجز دھامرا بولے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں لیکن آج پی پی دور کے مشیر خزانہ اور مشیر اطلاعات کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا. وفاقی کابینہ میں رد و بدل اور وزیر خزانہ کا استعفیٰ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی ویلکم کر دیا. 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹ سے زائد اضافہ. انڈیکس 37,700 کی سطح پر پہنچ گیا. وفاق کے بعد پنجاب میں بھی تبدیلی کی ہوا چلنے کا امکان. پہلے بیوروکریسی کی باری, پھر ہوں گے وزراء ادھر ادھر. کئی کھلاڑی پویلین بھی لوٹ سکتے ہیں. آئندہ چند روز میں بڑے فیصلوں کا امکان. وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ تیار کرنا شروع کر دی. وزیر اطلاعات پنجاب کی تردید, کہتے ہیں معاملے کو ٹویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے پاکستانیوں, بزدار صاحب, شاہ فرمان صاحب اور محمود خان صاحب کا بھی گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹ پر طنز کر ڈالا. کہا خان صاحب کیا آپ کے لیے بھی گھبرانے کا وقت آتا ہے؟ تینوں خاندان امیر ہو گئے, ملک قریب ہو گیا. پہلے جنرل مشرف نے NRO دے دیا. نواز شریف خاندان کو سعودی عربیہ جانے دیا. اس نے آصف زرداری کو NRO دے دیا 2008 میں واپس آنے کا. اس کے سارے کیس معاف کر دیے. شریف اور زرداری خاندان راتوں رات امیر ہو گئے. پرویز مشرف نے چوروں کو NRO دیا. شریف خاندان کو بیرون ملک بھیج کر حدیبیہ کیس بند کر دیا. وزیر اعظم کے اورکزئی میں مخالفین پر باؤنسرز. کہا یہ روز کھڑے ہو کر کہتے ہیں حکومت گرا دیں گے. ہم نے ایسا کیا جرم کیا جو حکومت گرا دیں گے؟ انہیں ڈر ہے کہ عمران خان مزید 2 سال وزیر اعظم رہ گیا تو یہ جیلوں میں ہوں گے.
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले बात ठीक करते हैं, लेकिन जो लहजा अख्तियार कर रहे हैं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का औरंगज़ई जलसे से खिताब, कहा पीटीएम वाले लोगों के दुख पर नमक ना छिड़के, बल्कि जो जुल्म हुआ है उस पर उनकी मदद करें। पाकिस्तान में माजी में गलतियां हुई और हमें इन गलतियों से सीखने की जरूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की गुफ्तगू। बोले मशरक़ वस्ता में अमन ना आने तक हरमैन शरीफैन को खतरा रहेगा। ये भी वाज़े कर दिया पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NLI रेजिमेंटल सेंटर बोंजी का दौरा। आर्मी चीफ ने रेजिमेंटल सेंटर में यादगार शहदा पर फूल रखे। NLI को सबसे ज्यादा शुजाअत के अवार्ड दिए गए। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट का बैच लगाया। कराची के सरकारी अस्पताल में 26 साला खातून की मौत का मामला उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का इंकिशाफ। लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। असमत की मुतादिद बार असमत दरी की गई। पुलिस ने एक मुल्जिम शाहजेब को हिरासत में ले लिया। रेप अस्पताल में हुआ या अस्पताल से बाहर, पुलिस की तहकीकात जारी। लड़की दांत का दर्द लिए कोरंगी के सरकारी अस्पताल आई थी। गलत इंजेक्शन लगने से मौत की वजह बताई गई थी। कराची की मासूम नश्वा जिंदगी और मौत की कशमकश में हालत बिगड़ने लगी। लियाकत नेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स ने अहले खाना को दुआओं का कह दिया। 9 माह की बच्ची दारुसेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से मफलूज हो गई थी। कराची के इलाके सच्चल में नन्हे एहसन को गोली पुलिस एहलकारों की ही लगी। फॉरेंसिक टेस्ट में जाए वखुआ से मिलने वाला खौल एहलकारों के हथियारों से मैच कर गया। बदीन में अलमनाक हादसा, 16 मुसाफिरों की जिंदगी निकल गया। अस्पताल में जेर इलाज 8 जख्मी भी दम तोड़ गए। 8 मुसाफिर मौके पर जान बहक हुए। मिट्टी से कराची आते हुए कोच बदीन मोजर के करीब उलट गई थी। सियालकोट में कातिल डोर में बच्ची गले में डोर फिरने की मौत पर गम से निढाल। और माड़ा दहशतगर्दी वाक़े में शहीद ज़ैनुल आबदीन की नमाज जनाजा निनारी खोल्ड में अदा कर दी गई। नौशेरो फिरोज में शहीद सिपाही जुल्फ़िकार मरी को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कोस्ट गार्ड के ऑफिसर समेत शहरियों ने शिरकत की। सिंध में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात, नकल माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में ज़ूलॉजी का पर्चा आउट हो गया। 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। खैरपुर में अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले तलबा के हाथों में पहुंच गया। लाड़काना में सिंधी के पर्चे में उम्मीदवार मोबाइल फोन से नकल करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। नैब की महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर्स और EDOs को नैब ने तलब कर लिया। महकमा तालीम से अफसरान की भर्तियों की तफसीलात भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की तकमील के लिए 20 मई की डेडलाइन दे दी। कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो इन्हें जेल में डलवा देंगे। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। अदालत ने 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ की गारंटी भी तलब कर ली। मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल ना हुआ तो गारंटी जब्त हो जाएगी। पंजाब में तेल का दूसरा बड़ा जखीरा मिलने का दावा। माड़ी पेट्रोलियम की दरियाफ्त। गोजर खान के करीब ढारिया 1 से 372 बैरल यौमिया खाम तेल मिलने की तवक्को। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त तवानाई बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित होगी। पंजाब में नए बल्दियाती निजाम का मुसव्विदा कानून मंजूर। पंजाब काबीना ने लोकल बॉडीज एक्ट 2019 मंजूर कर लिया। बिल हतमी मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली पेश किया जाएगा।
पंजाब में रमजान अल मुबारक के दौरान 2000 दस्तरखान लगाने का फैसला, 309 रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। अशियाए खुरनोश मार्केट की निस्बत 10 से 15 रुपए सस्ती होंगी। कांग्रेस रहनुमा हार्दिक पटेल को जलसे-आम में एक शख्स ने थप्पड़ रसीद कर दिया। वजह मालूम ना हो सकी। थप्पड़ खाकर मिजाज दुरुस्त हो गए। थप्पड़ मारने वाले शख्स को रिहा करने की हिदायत कर दी। आयरलैंड के शहर लंदनडरी में पुलिस के छापों के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम बरसा दिए, गाड़ियों को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन की फायरिंग से कवरेज करती खातून रिपोर्टर हलाक हो गई। पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। पीसीबी हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड कप के हवाले से खिलाड़ियों से गुफ्तगू, हौसला अफजाई की, मेहनत, लगन और जज्बे से खेलने की हिदायत। कहा कंडीशन मुश्किल है, तब्दील किया है और आगे भी करूंगा। उनको लाएंगे जो मुल्क के लिए फायदेमंद होंगे। महमूद खान और उस्मान बुज़दार अपनी टीम पर नजर रखें। अच्छा कप्तान मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे मैच जीतना होता है। उन्होंने मुखालिफिन पर भी तनकीद की। कहा जब से हमारी हुकूमत आई है सबसे पहले दिन से कह रहे हैं हुकूमत फेल हो गई। रोज खड़े होकर कहते हैं हुकूमत गिरा देंगे। हमने ऐसा क्या जुर्म किया जो हुकूमत गिरा देंगे? जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं। अभी भी मैंने अपनी बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा, उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। मैं महमूद खान आपको और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। कि जब से हमारी हुकूमत आई है ये सारे मिल के पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ, वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत गिरा देंगे? अभी तो अपोजिशन ने बॉलिंग ही नहीं कराई और हुकूमत की आधी टीम हिट विकेट हो चुकी है। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर बाउंसर्स बरसा दिए। कहती हैं इमरान खान आज परेशान नजर आए। आपने कहा कोई आपकी हुकूमत गिरा रहा है। हुकूमत को गिराने के लिए आपकी नालायकी, नाअहली और जुबान ही काफी है। पाकिस्तान के मफाद में सिर्फ बैटिंग ऑर्डर की नहीं बल्कि नालायक कप्तान की तब्दीली भी जरूरी है। उनका मजीद कहना था कि बुज़दार साहब, शाह फरमान साहब और महमूद खान साहब का घबराने का वक्त हुआ चाहता है। खान साहब क्या आपके लिए भी घबराने का वक्त हुआ चाहता है? कप्तान के नए खिलाड़ियों ने पोजीशन संभाल ली है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आजम स्वाति से वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ लिया, जबकि वजीर आजम की सिफारिश पर असद उमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजारत से अलहदगी के बाद असद उमर इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हो गए। कप्तान का काबीना में नया फील्डिंग ऑर्डर, खिलाड़ियों ने नई पोजीशन संभाल ली। सदर मुमलिकत ने वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम स्वाति से ओहदे का हल्फ लिया। एजाज शाह ने वजारत दाखिला पहुंचकर चार्ज संभाला। सेक्रेटरी दाखिला ने उन्हें ब्रीफिंग दी। तब्दीली के बाद फवाद चौधरी की निशिस्त पर फिरदौस आशिक अवान बैठी नजर आई। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत संभाल ली। गुलाम सरवर ने वजारत पेट्रोलियम में अलविदाई मुलाकातें तो कर ली, लेकिन कलंदान की तब्दीली पर नाराजगी दूर न हुई और उन्होंने अब तक एविएशन का चार्ज नहीं संभाला। मुंतखब वज़ीर आज़म की मुंतखब करदा काबीना में गैर मुंतखब अरकान की भरमार है। रोज़े अव्वल से इमरान खान के साथ रहने वाले खिलाड़ी पवेलियन लौट रहे हैं और ग्राउंड से बाहर बैठने वालों को कप्तान मैदान में उतार रहे हैं। 47 रुकनी काबीना में 17 गैर मुंतखब खिलाड़ी मौजूद हैं। काबीना में 24 वज़रा, 5 वज़ीर मुमलिकत, 13 मुआवनी खुसूसी और 5 मुशीर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ओपनर असद उमर को कल रिटायर्ड हर्ट करके ग्राउंड से वापस बुला लिया तो उनकी जगह लेने वाले वन डाउन बैट्समैन हफीज शेख दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। नए खिलाड़ी को किन कंडीशंस का सामना होगा, इस रिपोर्ट में जानिए।